Hello and a very good morning, dear students. Okay, so welcome back to the Level Up online classes. So we will continue to from where we had stopped the last time. Okay, so we were still on chapter. We are still in chapter one, and we were discussing on the resources and development. Okay, and we have already discussed. I've already explained to you all what is meant by resource, and we have also seen, the classification of resources. Okay, then we have discussed. In the classification, we have discussed four different points. Okay, and four different points had their own subtopics of the types of resources. Then we have also discussed the types of resources in a very brief manner. So now moving ahead, our next subtopic is, as you can see here towards your left, development of resources. Okay, now this is our new subtopic. Okay, so in this subtopic, we will be discussing uh, basically the relationship between resources and the human being. How are they related? How is their relationship? Okay, is the relationship good or is the relationship bad? How is human being taking care of the resources? Are they taking good care or they are being careless? So this is what we will be discussing now. And we will also in this very subtopic we will discuss how have the international bodies, the big nations of the world. Okay, they have how they have come up with ideas how to go about with the resource. Now, to begin with, we have to first understand that resources are the very first line. Okay, resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. Vital means important. Okay, now resources are very important for human survival. Human beings cannot survive without resources. Okay, they we humans are dependent on resources 24 into 7. The moment we open our eyes in the morning till the time we close our eyes and go to bed, every second we are using resource. I'll give you a very simple example. We need water to drink. Water is a resource. You need We need clothes to protect our bodies, our skin. Clothes are a resource. We need food for our survival. Food is a resource. We need vehicles to travel to far places. Vehicles are resources. Okay, so if you look to yourself and visualize, everything for every little bit of things we are dependent on resources. Okay, so this is the importance of resource in humans' life. Human beings cannot survive without resources. Okay? And resources is something which maintains the quality of life of human beings. Okay, now if we go back to millions and thousands of years back, prior to that time, resources were rarely, resources were available, freely available in the environment. People didn't have much knowledge about, resources. They didn't have, that that sense of, caringness for the nature. They thought humans thought that resources are the free gift of nature. They thought कि it is free. It will be free and वो आते जाएगा जाते जाएगा. हम लोगों को अपना फायदा के लिए जितना सकता है ले लेना है, वो सोचता पहले उनका. फिर क्या हुआ, they started using the resources very carelessly. जितना सका सब एक आदमी दो आदमी जितना जन सब लेते चला गया, सब कुछ लेते चला गया. Same thing if you look here also, if you look into our own state, Arunachal Pradesh. Okay, हम लोग जैसे I explained your timber business. Okay, खुंदा का business, timber business यहाँ पे सब कोई नहीं करता है. Timber is a resource. टिम्बर एक रिसोर्स है ना. जिसका आइडिया था, जिसका पैसा था, वो टिम्बर करते रहा पूरा धनाधन. वो सोचा नहीं कि मतलब हम जितना गच्छी काटेगा बाद में खत्म हो जाएगा, ये वो प्रॉब्लम्स आ जाएगा. वो नहीं सोचा. उसको लगा कि वो फ्री है, नेचर का फ्री है. धनाधन केयरलेस ठीक से यूज करता रहा. Okay, and we need to understand, we human beings, we are very greedy and we are very selfish. And our
wants are never, you know, are never satisfied. Yeah, it is like, you know, दिल मांगे मोर, हमको चाहिए चाहिए, हम लोग कभी भी, you know, satisfied नहीं रहता है. अगर अगर you know, हमारे पास पैसा है, वो पैसा से हम लाइक इजीली 1-2 साल जी सकेंगे, लेकिन नहीं, हमको और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए. उसमें हम लोगों का ग्रीड कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है. तो उसके चलते क्या हो जाता है, we keep on, you know, exploiting the resources, we keep on exploiting the nature. We you know, we never had the positive thought. If I, you know, continuously exploit the nature, if I continuously exploit the resources, बाद में क्या होगा, future generations को क्या होगा, वो thought कभी नहीं आएगी. Because you know, human beings are very selfish and greedy. वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है. Okay, this was the problem. फिर क्या हुआ बाद में, you know, those who were powerful, those who were rich, वो सब रिसोर्सेस, यू नो, वो अकेला लेके गया. बाद में क्या हो गया, जो रिसोर्सेस को ले गया वो अमीर बन गया, जो नहीं ले सका वो गरीब बन गया. तो सोसाइटी में क्या हो गया, सोसाइटी डिवाइड हो गया. कैसे डिवाइड हो गया, रिच एंड द पुअर, हैव्स एंड द हैव नॉट. ओके, हैव्स एंड द हैव नॉट. जिसके पास है वो सब लेके चला गया, जमा करते करते वो धनी बन गया, जो नहीं सका वो जैसा था वैसा ही गरीब बन गया. तो पहले क्या था, पहले सब बराबर था, सोसाइटी सब इक्वल था. बाद में क्या हो गया, जब एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज चालू हो गया, ठीक है, तो डिवीजन आ गया सोसाइटी में, रिच एंड द पुअर. हम लोग this example can be seen in your very practical life, in a very practical society. okay, अपना बस्ती में देखो कि बस्ती का अंदर कोई भी बराबर नहीं है, कोई ना कोई तो धनी होगा और सबसे गरीब वाला भी होगा बस्ती में. ये आपको हर जगह में मिलेगा. दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ रिच एंड द पुअर. ठीक है. नाउ अभी अगर मतलब रिसोर्सेज को, मतलब सिर्फ 10 आदमी से, अगर सिर्फ 2 जन ने रिसोर्सेज को पूरा ले लिया, तो सिर्फ 10 में से सिर्फ 2 जन धनी हो गया, बाकी 8 जन पर गरीब हो गया. ये एक एग्जाम्पल है. रिसोर्सेज को मतलब कंटिन्यूअसली एक्सप्लॉइट करते रहने से क्या हो जाता है, केयरलेसली यूज करने से क्या होता है. एंड सेकंड पार्ट क्या है, अगर हम लोग रिसोर्सेज को, फॉर एग्जांपल टिम्बर बिजनेस, अगर हम लोग गच्ची को काटते जाएगा तो फिर एक दिन क्या हो जाएगा, यू नो. अभी नो, आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल. व्हेन यू वर स्मॉल, ओके, व्हेन यू वर स्मॉल, तो सोचो अभी से यू नो 5-10 इयर्स बैक पीछे चला गया. उस समय क्या था, गर्म ज्यादा नहीं था जितना अभी. उस समय बारिश भी ठीक था, यू नो, सीजन वाइज बारिश देता था. उस समय इतना सब कुछ यू नो सिस्टमेटिकली था. समर सीजन आता था, फिर यू नो रेनी सीजन, फिर विंटर. उस समय यू नो ऐसा था. अभी क्या हो गया, साल में कभी भी कहीं से भी बारिश आ जाता है. गर्म तो इतना गर्म, मतलब वी आर नॉट एबल टू बेयर द हीट. एंड देन विंटर भी पहले जैसा उतना ठंडा नहीं है कंपेयर टू यू नो नाउ. अभी सब कुछ चेंज हो गया, बारिश कम हो गया, धूप ज्यादा हो गया, विंटर इज कमिंग वेरी लेट. तो ये सब कैसे हो गया, अचानक से कैसे चेंज हो गया. ये सब चेंजेस ये एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज से आया है. अगर हम लोग गच्ची को ठीक से ढन ढन काटते जाएगा तो हम लोगों को यू नो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा. ऑक्सीजन कम होने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है. ओके, ये सब तुम लोग साइंस में एकदम डिटेल्स में समझो. कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से क्या होता है, हीट ज्यादा होता है, तो उसके चलते गर्म ज्यादा होता है. फिर गच्ची को काटेगा तो बारिश कम हो जाएगा. तो यू नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स, एक्सप्लॉयटेशन मतलब यू नो उसको एकदम नहीं सोच के यू नो जहां तहां यूज करना अपना फायदा के लिए. ठीक है, तो ये क्या हो गया, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया, नेचर में इम्बैलेंस हो गया. नेचर का अभी कंफ्यूज हो गया, अरे मेरे साथ क्या हो रहा है. ठीक है, कभी कभी हम लोग का ऐसी है, आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल. ओके, कभी कभी ऐसा होता है ना, जब तुम खाना खाते हैं, नॉर्मल खाना, तुमको जितना चाहिए तुम खा लेता है, तब
तुमको कुछ नहीं होता है, ठीक है, तुमको लाइक ठीक ठाक ही लगता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर मतलब सब्जी बहुत अच्छा है, मीट बनाया है, गौरी मांस, ठीक है, तब क्या होता है, बहुत ज्यादा खा देते हैं खाना, फिर ओवर ईटिंग हो जाता है, फिर थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, राइट, अनकंफर्टेबल फील होता है, तो तेरा बदन भी थोड़ा सुस्ती हो जाता है, कि तेरा पेट पूरा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि तेरा बदन कंफ्यूज हो गया, अरे आज तो कैसे इतना ज्यादा आ गया, नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा आ गया, तो कंफ्यूज हो जाता है, फिर तुमको थोड़ा इरिटेशन होता है, तेरा तकलीफ मिलता है। तो सेम चीज नेचर को भी ऐसा होता है, अगर हम लोग नेचर को पूरा डिस्ट्रॉय करते हैं तो नेचर भी कंफ्यूज हो जाता है, उसको तकलीफ होता है, ठीक है। तो उसके चलते बाद में क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग तो सुना होगा आप लोग, फिर ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, तो ये सब चीज को हम लोग एकदम विस्तार में समझेंगे। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब ग्लोब ग्लोब मतलब हम लोग का जो अर्थ है ना, गोल अर्थ, तो वो गर्म होते जाता है, उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। वो ग्लोबल वार्मिंग होता कैसे है, जब ओजोन लेयर डिप्लीट मतलब खत्म होना, ठीक है। ओजोन लेयर जो क्या होता है, ओजोन लेयर जो एक लेयर है, जो हम लोग का अर्थ है ना, तो अर्थ गोल होता है, तो उसका ऊपर एक लेयर होता है, ओजोन लेयर। वो लेयर जो क्या करता है, जो धूप का जो सब एकदम काला काला, जो मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग रेस, एकदम कड़क धूप को, मतलब वो हम लोग का अर्थ में घुसने से उसको रोकता है, ओजोन लेयर। अगर ओजोन लेयर नहीं होगा तो एकदम धूप पूरा, सन का हीट से हम लोग पूरा जल जाएगा। तो ये जो ओजोन ओजोन लेयर है, वो बचाता है इसका, ठीक है। तो देन environmental pollution and land degradation. Now, see, ह्यूमन बींग्स को डेवलपमेंट बहुत जरूरत है, कुछ भी डेवलपमेंट हो, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या कुछ भी हो, तो क्या करते हैं हम लोग, पहले तो पॉपुलेशन कम था, जैसे 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 पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा तो हम लोग क्या करता है, आदमी बढ़ गया, मिट्टी चाहिए, और ये जितना आदमी बढ़ गया उसको घर बनाने के लिए, फिर बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज चाहिए हम लोगों को, इंडस्ट्रीज चाहिए, तो ये सब हम लोग क्यों करता है, हम लोगों का कंफर्ट कंफर्ट के लिए, राइट। तो अगर हम लोग अपना कंफर्ट के लिए ही सिर्फ सोचते रहेगा तो नेचर जो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। एनवायरमेंटल पोल्यूशन कैसे होता है, तो बराबर फैक्ट्रीज बनाए हैं हम लोग, उसमें से काला धुआं निकलता है, वो धुआं जो बाद में एटमोस्फेयर में चला जाता है, फिर वहां से क्या होता है, जितना भी साफ प्योर गैस होता है वो सबको पोल्यूट कर देता है, गंदा कर देता है। फिर लैंड डिग्रेडेशन मतलब जैसे कि हम लोग का यहाँ पे बड़ा एकदम घना जंगल था पहले, वो सबको काट के उसमें खेती कर दिया हमने, फिर उसमें कुछ बिल्डिंग खड़ा कर दिया, फैक्ट्रीज खड़ा कर दिया, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है। देन मूविंग अहेड, फिर हम लोगों का नेक्स्ट यहाँ पे, तो ना अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि रिसोर्सेज को अगर हम लोग ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं करेगा तो उसका नुकसान क्या क्या हो सकता है। हम लोगों ने देखा कि मतलब किस तरह मतलब रिसोर्सेज को अगर हम लोग केयरलेसली यूज करने से क्या होता है, ठीक है, तो वो सब चीज हम लोगों ने देखा। अभी हम लोग देखेगा कि मतलब रिसोर्सेज को मतलब कैसे केयर करना है, कैसे उसको एक अच्छा ढंग से यूज करना है, ठीक है। हाँ, towards your right, look here. An equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace. Okay, now, तो मतलब क्या है, अगर हम लोग अगर हम लोग रिसोर्सेज को मतलब खत्म होने से बचाना है, तो उसको क्या करना है, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है रिसोर्सेज। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है, अगर बस्ती में 10 घर है, अगर 10 घर है, तो
और वो बस्ती में ना जंगल में बहुत सारा टिम्बर का गच्ची है, टिम्बर बिजनेस कर सकता है। तो क्या है, वो टिम्बर बिजनेस जो सब 10 घर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, सिर्फ एक आदमी उसको यूज नहीं करना। ये एक सिंपल एग्जांपल दिया, कुछ भी रिसोर्सेस वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना है, सिर्फ एक दो आदमी उसको नहीं लेके भाग जाना है। ऐसा करने से क्या होता है, वी हैव डिस्कस हैव एंड द हैव नॉट, रिच एंड द पुअर डिस्ट्रीब्यूट डिवाइड हो जाता है सोसाइटी में। ठीक है। Now, if the present trend of resource depletion by a few individuals and countries continues, the future for planet is in danger. Now, अभी तक क्या चल रहा है कि रिसोर्सेज को मतलब सिर्फ गिना चुना आदमी लोग यूज कर रहे हैं। सब कोई को मतलब सभी को मतलब बराबर भाग नहीं कर रहे। जो सकते धनाधन लेके जा रहे, जिसको नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा। अभी अगर ऐसा करने से क्या होगा, हम लोग का जो प्लेनेट है, हम लोग का जो पृथ्वी है, अर्थ, वो बहुत खतरनाक हो जाएगा फ्यूचर में। अभी से 50-100 साल का बाद खत्म हो जाएगा हम लोग को दुनिया, अगर ऐसा चलेगा तो। अगर मतलब हम लोग रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा तो हम लोग का प्लेनेट फ्यूचर में अभी से 50-100 साल का बाद हम लोग का प्लेनेट दुनिया पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है। सो देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिसोर्स प्लानिंग। नाउ रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? तो सी दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल। ओके, अगर 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 बस्ती में, बस्ती मतलब अगर तुम्हारा घर में मान लो किसी का शादी, तुम्हारा भैया दीदी या किसी का भी शादी, तो शादी को ऑर्गेनाइज करने से पहले हम लोग क्या करता है, हम लोग प्लानिंग करता है, राइट। शादी कब करेगा, कैसे करेगा, कितना जन को बुलाएगा, क्या मीट खाएगा हम लोग, कहाँ बनाएगा, पंडाल कितना बड़ा बनाएगा, किस किस को बुलाएगा, क्या क्या गिफ्ट्स रखेगा, क्या क्या ड्रेस पहनाएगा, राइट। ये सब हम प्रॉपरली प्लान करता है। तो सेम थिंग रिसोर्स के लिए भी रिसोर्स प्लानिंग बहुत 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 जरूरी है। अगर हम लोग किसी चीज को अगर ठीक से, आप लोगों को सबको पता है, अगर हम लोग किसी चीज को ठीक से प्लान करके नहीं करेगा तो वो फेल हो जाता है, हम लोगों को कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। सेम चीज रिसोर्स के साथ है। अगर रिसोर्सेज को हम लोग प्रॉपरली प्लान करके यूज नहीं करेगा तो वो फेल हो जाएगा। कुछ दिन के बाद हम लोग के लिए कुछ नहीं बचेगा। So that is why resource planning is very essential. Okay. No. Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all human forms. Okay, resource planning is very important. We will discuss all these things in detail. Resource planning क्या होता है, कैसा करना है। Okay. Now, एक चीज है यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। Now, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? Now, we have to understand one thing कि डेवलपमेंट भी इम्पोर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए डेवलपमेंट भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम लोग डेवलपमेंट को करने से पहले हम लोग को सोचना है कि अगर हम ये कुछ डेवलप करेगा तो उसका इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ के लिए कैसा होगा। अभी डेवलपमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब हम चलो हम एक फैक्ट्री खड़ा कर दिया, फैक्ट्री खड़ा करने के बाद काला धुआं से 10 आदमी मर गया, ऐसा नहीं होना है। ठीक है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मतलब हम फैक्ट्री खड़ा कर रहे या कुछ बड़ा बिल्डिंग बना रहे और पूरा पहाड़ को हम जंगल को काट दिया, पूरा बड़ा बड़ा गच्ची को काट दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट कब होगा, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि डेवलपमेंट डेवलपमेंट should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation. का मतलब क्या है, हम लोग डेवलपमेंट जब करते हैं ना तो एनवायरनमेंट को ज्यादा इफेक्ट नहीं होना है। हम लोग डेवलपमेंट एक तरफ तो कर दिया, लेकिन एक तरफ क्या कर दिया, हम लोग नेचर को हम लोग खतरा में डाल दिया। हम लोग डेवलपमेंट के नाम में अभी तक तो कितना गच्ची को काट के खत्म कर दिया। बाद में हम लोगों का बाद जो आएगा, हम लोगों का बच्चा, हम लोगों का ग्रैंड सन्स आएगा, उनको कुछ नहीं मिलेगा। अभी अगर हम लोग सब कुछ खत्म कर देगा तो बाद में हम लोगों का बच्चा, हम लोग का बाद जो आने वाला है वो लोग के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग मतलब हम लोगों को जितना चाहिए उतना ही यूज करना है हम लोग, लेकिन हम लोगों को
वो सोच नहीं आता, क्योंकि ह्यूमंस आर वेरी ग्रीडी एंड सेल्फिश, दे ओनली थिंक ऑफ देमसेल्व्स. So that is why resource planning is very important. We have to plan resources in such a way that we are making our lives comfortable. At the very same time, we are also taking care of the nature. Plus, we are also thinking of our future generations. We have to preserve the resources for the ones to come after us. They also should be able to see trees. They also should be able to see animals. It shouldn't be like that, after the ones that are supposed to come after us, उनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको गच्ची दिखाई नहीं देगा, गच्ची क्या होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए. हम लोग का समय अगर हम लोग सब पूरा गच्ची को खत्म कर देगा, एक भी गच्ची नहीं बचेगा, तो बाद में हम लोग का बाद जो आएगा उसको तो गच्ची गच्ची ट्री क्या चीज उसको पता ही नहीं चलेगा. उसको सिर्फ बस एक फोटो में दिखाई देगा, ओ ये एक ट्री था, सिर्फ फोटो में दिखाई देगा, उसको एक्चुअल में दिखाई नहीं देगा. अगर हम लोग रिसोर्सेज को ठीक से प्लान करके यूज नहीं करेंगे, तो कल कल को हम लोगों का बाद जो आने वाला है, उसको कभी ये वाइल्ड एनिमल्स, जो डियर, हरिन, जो भालू है, जो बर्ड्स, पीकॉक्स वगैरह, वो लोग वो लोग उसको देख नहीं पाएगा. अगर हम लोग रिसोर्सेज को खत्म कर देगा तो वो लोग सिर्फ फोटो में दिखाई देगा, चलो ये पीकॉक था, पीकॉक ऐसा होता था, लेकिन उसको एक्चुअली कुछ दिखाई नहीं देता पीकॉक. क्योंकि अगर हम लोग प्रॉपर प्लानिंग से नहीं चलेगा तो फ्यूचर ऐसा ही होगा. उनको कुछ एक्चुअल लाइफ में कुछ दिखाई नहीं देगा. उनको रियल ब्यूटी ऑफ लाइफ विल बी टोटली वैनिश्ड. द ब्यूटी ऑफ coexisting in a balanced environment, वो नहीं मिलेगा. वो लोग सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर हम लोग इतना तेजी से मतलब रिसोर्सेज को अनप्लान्ड मैनर और केयरलेसनेस यूज करेगा. ठीक है. नाउ there is something. ना तो पूरा दुनिया को पता था कि मतलब रिसोर्सेस एकदम अनप्लान्ड केयरलेसली यूज कर रहा था. अगर वही रास्ता से चलते जगह तो रिसोर्सेस बहुत जल्दी खत्म हो जाए. तो बराबर जितने भी देश लोग हैं, बिग बिग कंट्रीज, उनको लगा कि नहीं, हम लोगों को मीटिंग करना पड़ेगा इसके बारे में. तो इसके चलते 1992 अभी से लगभग 18 years बैक, 18 to 20. ओके, तो 18 years बैक यहाँ पे एक सबमिट हुआ. सबमिट मतलब एक सॉर्ट ऑफ मीटिंग कॉन्फ्रेंस. ओके, रियो डी जेनेरियो, ये ब्राजील में है. रियो डी जेनेरियो एक जगह का नाम है, ब्राजील में. ओके, तो 1992 को जून जून का महीना में था. 1992 को रियो डी जेनेरियो ब्राजील में मतलब अर्थ समिट मतलब एक सब बड़ा बड़ा जितना भी बड़ा बड़ा कंट्रीज लोग का लीडर्स लोग हैं, प्रेसिडेंट या बड़ा बड़ा प्रेसिडेंट्स या लीडर्स कंट्री लोग, ठीक है, वो लोग ब्राजील में जाके मीटिंग किया कि मतलब ये उनको लगा कि मतलब हम लोग का अर्थ, हम लोग का पृथ्वी बहुत खतरा में. तो उनको ये महसूस हो गया कि मतलब चलो हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा. ऐसे ही मतलब यूज करते जाएगा, खत्म करते जाएगा, तो मतलब फ्यूचर बहुत डार्क है. तो ओके, तो अराउंड 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स, इसमें स्टेट्स मतलब हम लोग का जो स्टेट्स नहीं है अरुणाचल, नागालैंड, वो स्टेट्स नहीं. इसमें स्टेट्स का मतलब कंट्रीज, जैसे कि इंडिया, अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, सब कंट्रीज. तो अराउंड 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मतलब 100 कंट्रीज बेसिकली. ठीक है, अराउंड 100 कंट्रीज ब्राजील में वो लोग मीटिंग किया. और ये सबसे इंटरनेशनल, सबसे पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट, सबसे पहला मीटिंग जो मतलब दुनिया के बारे में सोच रहा है, दुनिया को बचाना है, किस चीज से बचाना है, विल डिस्कस. ठीक है, ये मीटिंग क्यों रखा गया था? The summit was convened for addressing urgent problems of environmental protection. सबसे पहले environmental protection, environment को protect करना है, वो पहले एजेंडा था. फिर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और मतलब हम लोग का जो मतलब डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल, ग्लोबल मतलब इंटरनेशनल लेवल में कैसे करना है. ठीक है, फिर तो ये सॉरी
तो ये एक सबसे पहला मीटिंग रखा गया था यहाँ पे रियो डी जेनेरियो 1992 जून का महीना में ब्राजील में। ठीक है, इसका मेन फोकस यही था कि हम लोग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को एक इम्पोर्टेंस देना है, हम लोग रिसोर्सेज को मतलब कैसे यूज करना है, प्रॉपरली रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, वो सब चीज के बारे में डिस्कशन करने के लिए 100 कंट्रीज का बड़ा बड़ा लीडर्स लोग ब्राजील में इकट्ठा। ठीक है, तो ये मीटिंग में, ये अर्थ समिट में बहुत चीज डिस्कस किया इन लोगों ने। ठीक है, उनका उनका मेन एजेंडा क्या था, लाइक मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये मीटिंग में क्या गया था, इन लोगों ने, जितना भी लीडर्स लोग आया था, उन लोगों ने एक डिक्लेरेशन दिया, लाइक आफ्टर एवरी मीटिंग हम लोग कुछ मीटिंग क्यों करते हैं, कुछ चीज को कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो उसके बाद कुछ रेजोल्यूशंस लेता है, हम लोग सिग्नेचर करते हैं कि चलो ये करना है, ये करना है, या हम लोगों ने मीटिंग में डिस्कस किया, चलो ओके आई एग्री विद दिस, राइट। जैसे कि हम लोग का बस्ती में, अगर बस्ती में कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम लोग का जो गांव बुरा होता है, मेंबर वगैरह, वो लोग मीटिंग के लिए बुलाता है, राइट। उसमें कुछ मीटिंग के बाद कुछ डिसीजन लेता है ना कि चलो इसको ठीक करना है, ये ऐसा है, ये ऐसा होना चाहिए। तो सेम चीज ये रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 में हुआ था। तो उन लोगों ने एक डिक्लेरेशन साइन किया ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लिए और बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब ये जो है, ये मीटिंग में एक सब एक वेरी इंपॉर्टेंट एजेंडा वो लोगों ने साइन किया था। वो एजेंडा का नाम था एजेंडा 21। ठीक है, एजेंडा 21 जो क्या था, एजेंडा 21 जो क्या था, इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो उसमें ये एजेंडा 21 था। एजेंडा 21 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एकदम इम्पोर्टेंस देना है। ठीक है ना, ये एजेंडा 21 में क्या था, एक तो था कि एनवायरनमेंट को डैमेज होने से बचाना है, कैसे बचाना है वो डिस्कस करा गया। फिर पोवर्टी गरीबी को कैसे हटाया जाए। फिर जो बड़ा जो बीमारी फैलता है, जैसे कि अभी हम लोगों का एट द प्रेजेंट टाइम हम लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोरोना से, कोविड-19। तो ये एक डिजीज है। तो अभी भी मतलब बड़ा बड़ा देश लोग सब डिस्कस कर रहा है ये डिजीज को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, देन लाइक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉमन इंटरेस्ट क्या है, तो वो सब चीज के बारे में डिस्कस किया गया था एजेंडा 20। ओके, तो ये एक इंटरनेशनल लेवल में डिस्कस किया। फिर बाद में वो लोगों ने क्या बोला कि एजेंडा 21 जो एवरी लोकल गवर्नमेंट का होना चाहिए। जैसे कि इंडिया हो गया, तो इंडिया का एजेंडा 21 अलग होगा। जैसे कि इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो तो इंडिया को ही पता होगा। तो उन लोगों ने बोला कि हर एक देश अपना अपना एजेंडा 21 बनाना है। चलो इंडिया में ये प्रॉब्लम है, इंडिया में पॉवर्टी का प्रॉब्लम है, तो ये एजेंडा 21 में आ गया। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना है, एजेंडा 21 में आ गया। इंडिया में करप्शन को हटाना है, एजेंडा 21 में डाल दिया। इंडिया में बीमारी को हटाना है, एजेंडा 21 में। तो इन लोगों ने मतलब ये डिस्कस किया कि एवरी लोकल गवर्नमेंट में, एवरी लोकल लेवल गवर्नमेंट में अपना अपना एजेंडा 21 होना बहुत जरूरी है ना। क्यों ये बोला गया, क्योंकि देखो ना, आई विल गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल। अगर अगर तुम्हारा घर में कुछ प्रॉब्लम है, राइट, अगर तुम्हारा घर में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो तुमको सबसे पहले घर का प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होना कि तुम्हारा घर में भी प्रॉब्लम है लेकिन तुम दूसरा घर का प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हो, ऐसा तो नहीं होता है ना। सो दैट इज वाई लोकल गवर्नमेंट को बोला गया है कि अपना अपना एजेंडा बनाना है, क्योंकि सबसे पहले अपना घर को सुधारना है। अगर अगर अपना घर सुधर गया तो बाद में तुम जाके दूसरे का घर को सुधार सकते हैं। अपना घर को नहीं सुधार के दूसरे के घर को सुधारने जगह पर वो तो नहीं चलेगा।
right? So that is why उन लोगों ने बोला कि local governments, every country has to have its own agenda 21. तो बाद में क्या हो गया, अगर every country you know has its own agenda 21, तो क्या होगा, छोटा छोटा करके, जैसे कि इंडिया का एजेंडा 21 बना दिया, तो उसमें डाल दिया कि क्या क्या प्रॉब्लम है, किस किस को रेक्टिफाई करना है। सेम चीज अगर पाकिस्तान भी मतलब अपना अपना एजेंडा 21 डाल दिया, अगर चाइना अपना एजेंडा 21 डाल दिया, तो ऐसे धीरे 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 करके क्या हो जाएगा, एक दो तीन चार पांच कंट्री मिल मिल के बाद में क्या हो जाएगा, पूरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो छोटा छोटा चीज से मतलब हम लोग डेवलपमेंट ला सकते हैं, छोटा छोटा चीज में से हम लोग प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द टॉपिक, सेकंड टॉपिक दैट इन दिस चैप्टर। तो आज के लिए इतना तक ही। अगर आप कुछ समझ में नहीं आया, इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड माय टीचिंग, इफ आई मिस समथिंग, okay, please let me know, okay, and yes, I would end my class here today, okay, thank you and have a nice day.